Hello friends, in this video we'll talk about the software. So what is software? Software is a collection of program, or it's a set of instruction, or it's a set of statements. So there are two type of softwares. One is application software, other is system software, and utility software is one of the part of system software. So we see the application software. This application software is the software that perform a specific task. For example, MS Office, वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टेली अकाउंटिंग के लिए, कोरल ड्रॉ फॉर डिज़ाइनिंग, DBMS फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट. So now the system software, what it does, it manages the hardware. So system software manages the hardware, and it's a operating system. So for example, operating system is a system software. It manages the hardware. For example, Windows, BIOS is a program, translator is a program, and coder is a program. And for utility software, for example, antivirus, clean master device driver. So these are the utility software. So hardware cannot work without software, and software cannot work without hardware. So both are needed. So what is MS Office? The question is an application software, is an application suite, is an open source software, closed source software, or freeware software? So first we must know that is an application software is correct. Is an application suite? Yes. Suite means a package. Yes, it's an application suite. Then in MS Office there is MS Word, MS Excel, MS Word for document, and the extension is .docx, and MS Excel is spreadsheet, and extension is .xlsx. MS PPT slides and extension .pptx. MS Outlook for email clients, and MS is database and extension ACCDB. So if we talk about earlier they used to use .doc in this MS Office document, but now they have added a word x dot. Now this is .docx since 2007. So, and it is so MS Office and application software is an application suite, and it is not an open source software. It's a closed source software. Means MS Office is not freely available. आपको खरीदना पड़ता है, and if you are using a trial version or not the full version, and source code is not available. और इसका source code available नहीं है online. You cannot see the source code कि इसे कैसे बनाया गया है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, सोर्स कोड भी इनका अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल लाइनस एंड एंड्रॉयड को 2005 में एंड्री ड्यूबिन ने बनाया था. अपने नाम पे इन्होंने नाम रखा एंड्रॉयड. 2005 में एंड्री ड्यूबिन ने बनाया था, एंड फिर गूगल को बेच दिया था. और गूगल के भी बहुत सारे वर्जन आए हैं, ABCDEFGH, तो उसमें उनके अलग अलग नाम होते हैं. तो पहले था ओरियो, नाउ इट इज़ पाई. तो इट इज़ अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड पाई. इससे पहले था ओरियो. फिर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं. इनका सोर्स कोड, लेकिन इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, तो ये फ्रीवेयर होते हैं. फॉर एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर, ये फ्रीली अवेलेबल है लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं अवेलेबल है. सो इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर. द सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनमें. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर यूजर. तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. तो कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है दिस सॉफ्टवेयर, एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट वर्क एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसके बाद करते हैं ना, तो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं. एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है? आपको कमांड देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल है MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स एंड OSI. तो ये हम यूज़ नहीं करते नॉर्मली. हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जैसे विंडोज़ होता है, इसमें मैक, जैसे मैकिनटॉश एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिनटॉश, विंडोज़. फिर हमारा उबंटू है, ठीक है, GUI यूनॉक्स, फिर यूनिक्स और GUI. तो ये सारे हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो हमारे दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसमें कमांड देनी पड़ती है, एक होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब इसमें पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. देखो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सफारी हमें पता है. सफारी क्या होता है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ज़्यादातर एप्पल आईफोन्स में होता है. iOS एप्लीकेशन होती है, एंड ये मीगो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब OS. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है. तो स्मार्टफोन में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? जैसे विंडोज़ यूज़ करते हैं सिम्बियन. जैसे नोकिया ने अपने मोबाइल में विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, ऑल्दो फेल हो गया क्योंकि एंड्रॉयड इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. तो सिम्बियन ये नोकिया यूज़ करते थे, बादा ये सैमसंग यूज़ करते थे, बट अब ये एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. iOS ये एप्पल का अपना अलग चलता है, ब्लैकबेरी 1.1 ये उनका अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है. फिर कर्नल का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ कर्नल? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है.
तो क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो मोबाइल में कहीं भी, तो 2 टाइप के मोड होते हैं, कर्नल मोड होता है, यूज़र मोड होता है। तो कर्नल मोड में सिस्टम प्रोग्राम्स रन होते हैं, यूज़र मोड में यूज़र प्रोग्राम रन होते हैं। जैसे आपने मोबाइल खोला तो आपका मोबाइल प्रोसेस होगा, ठीक है, चीज़ें स्टार्ट होगी, तो वो सिस्टम प्रोग्राम में चलिए, मतलब कर्नल मोड में चला है। अगर आपने व्हाट्सएप खोला तो वो यूज़र मोड में आ जाएगा, तो यूज़र प्रोग्राम रन है। फिर हमें ये डेट्स भी याद रखनी, कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। MS DOS कब बना था? 1981, विंडोज़ 1985, MS ऑफिस 1990। तो MS DOS 1981, विंडोज़ 1985, MS ऑफिस 1990। फिर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो हम कमांड देते हैं ना, ये ब्लैक कलर का पेज ओपन हो जाता है कई कंप्यूटर्स में, तो ज़्यादातर ये यूज़र इंटरफेस वाले कंप्यूटर होते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन हो जाती है, इसमें ये लिखा होता है C./this साइन, इसको एंड कर्सर होता है, ये हिलता रहता है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज दिस? इट्स कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। इट्स अ सिग्नल दैट कमांड इज कमिंग फ्रॉम द यूजर। ये सिग्नल है, ये बताता है कि कमांड यूजर से आ रही है, ठीक है। इट इज सिग्नल दैट कमांड इज कमिंग फ्रॉम द यूजर। फिर ये जो स्क्रीन होती है ब्लैक कलर की जो ओपन हो जाती है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्मिनल। तो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो टर्मिनल यूज़ करते हैं, वो कमांड पे वर्क करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं आज भी टर्मिनल यूज़ करते हैं, ठीक। फिर हमारे 2 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें जो चीज़ होती है, ठीक है, जो मेन रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है, इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे मेन फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं, फिर डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, फिर यहाँ पे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, सब फोल्डर। इस तरीके से होता है। मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, रूट फोल्डर बोलते हैं मेन फोल्डर को। फिर CMD कमांड को बोलते हैं CMD। फिर सिंगल यूजर सिंगल टास्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो 2 टाइप के होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS यूनिक्स। इसमें आप एक बार में एक ही टास्क कर सकते थे। सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप एक बार में बहुत सारे, आप गाने भी सुन रहे हो, आप टाइपिंग भी कर रहे हो, तो इसमें मल्टी टास्क कर सकते हो। सिंगल यूजर मल्टी टास्क, और मल्टी यूजर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सिंगल यूजर मल्टी टास्क, मल्टी यूजर इट इज सेम। तो विंडोज़ मैक, यहाँ पे साइमल्टेनियस मल्टी टास्क आप ओपन कर सकते हो कंप्यूटर में। तो ये हमारा नॉर्मली विंडोज़ मैक में होता है। और सिंगल यूजर सिंगल टास्क था हमारा MS DOS यूनिक्स। फिर जैसे फिर मल्टी यूज़र कैसे हो सकता है? एक सपोज आप नेटवर्क से कनेक्ट हो, फॉर एग्जांपल ये P1 है, P2 है, 3 पर्सन से, ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है फेसबुक से। तो जो भी आप फेसबुक पे चीज़ें चला रहे हो सर्वर कंप्यूटर पे कनेक्टेड है, तो दिस इज मल्टी यूज़र, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका सर्वर एक जगह लोकेटेड है। फिर हम MS वर्ड देखते हैं, ठीक है। MS वर्ड में देखो क्या होता है, एप्लीकेशन, टास्क एंड जॉब और प्रोसेस। तो एप्लीकेशन अगर हो तो हम PC में वही काम एप्लीकेशन बोलते हैं जो हम काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टास्क बोलते हैं, और CPU में हम जॉब और प्रोसेस बोलते हैं। तो PC में एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क एंड CPU में जॉब और प्रोसेस, तो नाम अलग है, काम सेम है। फिर माइक्रो प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोसेसर कौन होता है? CPU। तो हमारा डुअल कोर प्रोसेस होता है, क्वाड कोर प्रोसेस होता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर होती है। होता क्या है कि हमारे 2 CPU लगे होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग। से कई बार बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें प्रोसेस करनी हो तो कैसे करते हैं, तो उसमें कई कोर के प्रोसेसर लगे, तो मतलब सिंगल चिप में 4 कोर लगा दी, ठीक है। तो सिंगल CPU हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर में सिंगल CPU यूज़ करते हैं, लेकिन जो मल्टी जो एक से ज़्यादा CPU भी यूज़ होते हैं बट नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ये होते हैं जैसे फेसबुक को अपने सर्वर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है तो वो मल्टीपल CPU रखेगा, और एक CPU में हो सकता है क्वाड कोर प्रोसेसर हो, लेकिन उससे भी काम ना चले तो दूसरा CPU लेके आना पड़ेगा। तो मोर देन 1 प्रोसेसर, ठीक है। यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फॉर द मल्टी प्रोसेसिंग मशीन और कंप्यूटर। तो सबसे पहले मल्टी प्रोसेसिंग मशीन कौन सी थी? यूनिक्स थी, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था फॉर द मल्टी प्रोसेसिंग मशीन। तो सर्वर कंप्यूटर में ज़्यादातर मोर देन 1 प्रोसेसर होते हैं, जो हम नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें हो सकता है डुअल कोर प्रोसेसर हो, लेकिन हमारा CPU तो एक ही होता है, एक ही CPU में एक ही चिप में हो सकता है क्वाड कोर प्रोसेसर लगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।